زندگی نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ اچھا لگ رہا ہے؟ آپ اگر بولیے یا رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کو رکھیے میری طرف سے، اس جلسے کے لیے میں یہ دے دیا اپنی طرف سے۔ دوسرا شعر سنیے، تاج الشریعہ فرماتے ہیں، داغ عشق نبی لے چلو قبر میں، داغ عشق نبی لے چلو قبر میں، داغ عشق نبی لے چلو قبر میں، ہے چراغ لہد روشنی کے لیے۔ واللہ 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 واللہ، چاندنی چار دن ہے سبھی کے لیے، چاندنی چار دن ہے سبھی کے لیے، چاندنی چار دن ہے سبھی کے لیے، ہے صدا چاند عبد النبی کے لیے۔ واللہ 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 واللہ۔ آخری شعر، ہم لوگ سنی مسلمان ہیں، نبی کے خلاف نہ کچھ سن سکتے ہیں اور نہ ہی کچھ بول سکتے ہیں۔ ہم ایسے مسلمان ہیں جو اپنے نبی کی عظمت کی خاطر جان دے بھی سکتے ہیں، جان لے بھی سکتے ہیں، کہ یہ سبحان اللہ۔ آخری شعر سنیے، رب کعبہ نے سنی بنایا ہمیں، جو سنی ہے صرف وہی کہیں گے سبحان اللہ۔ رب کعبہ نے سنی بنایا ہمیں، 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 تاکہ ہم جان دے نبی کے لیے۔ برادر اسلام، آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوم جھوم کر عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نظرانہ پیش کریں۔ کریں آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علی اسلام۔ اب تک آپ حضرات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، بزرگان دین کی منقبت سماعت کی۔ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ حقیقت آپ حضرت کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ حضرت واقعی سننا چاہتے ہیں تو اس نیت لے کر بیٹھیے، اس نیت کو دل میں نیت اور ارادہ پختہ کر کے بیٹھیے کہ آج جب تک جلسہ ختم نہیں ہوگا ہم لوگ نہیں جائیں گے، کل سے پورا رات آپ لوگ سوئیں گے۔ برادر اسلام، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور سے بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، بے شک، اور اسی رسول کے کلمہ پڑھنے والے ہم سنی مسلمان نبی کی خاطر آج کی رات گزار رہے ہیں۔ برادر یاد رکھیے، میں نے جو شعر کہا ہے کہ رب کعبہ نے سنی بنایا ہمیں، ہم سنی مسلمان ہیں۔ دنیا میں آپ کو مذہب اسلام کے اندر بے شمار فرقے نظر آئیں گے، کبھی وہابی کے نام پر، کبھی دیوبندی کے نام پر، کبھی قادیانی کے نام پر، کوئی تو انگریزوں کے پیسے سے فرقہ بنایا ہے، کوئی تو اپنی لان و تان کی وجہ سے فرقہ بنایا ہے، کوئی تو اپنی عظمت کو بڑھانے کے لیے فرقہ بنایا ہے، کوئی اپنی شان کو بلند کرنے کے لیے فرقہ بنایا ہے، کوئی اپنی دکانداری چلانے کے لیے فرقہ بنایا ہے۔ لیکن رب کعبہ کی قسم، جس سنیت
सरकार आला हजरत ने की है, मसलक आला हजरत से हो रही है, जिस सुन्नियत की खिदमत मखदूम सिन्ना की चौखट से हो रही है, जिस सुन्नियत की खिदमत अजमीर मुअल्ला से हो रही है, जिस सुन्नियत की खिदमत बगदाद शरीफ में गौसे आजम की बारगाह से हो रही है, जिस सुन्नियत की खिदमत इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से हो रही है, वो सुन्नी किसी अंग्रेज के बनाया हुआ फिरका नहीं, किसी पैसे वाले का फिरका नहीं, किसी डकैत का बनाया हुआ फिरका नहीं, सऊदिया के रियाल से बिकने वाला फिरका नहीं। अहले सुन्नत वल जमात जो सुन्नी फिरका है, रब्बे काबा की कसम इस फिरका के बनाने वाला मदीने के आमिना का लाल हम सुन्नी मुसलमान हैं, महफिलों में जाते हैं, मजलिसों में जाते हैं, जलसों में जाते हैं, अंजुमन गाह में जाते हैं, जिस जलसे में नबी की तारीफ हो अदब से बैठ जाते हैं, जिस जलसे में नबी की तौसीफ बयान की जा रहे हो उस जलसे में अदब से बैठ जाते हैं, जिस जलसे में नबी की शान की बात हो, जिस जलसे में नबी की अजमत की बात हो, जिस जलसे में नबी की रिफत की बात हो, जिस जलसे में नबी की बुलंदी की बात हो, उस जलसे में अदब से बैठ जाते हैं, और जिस जलसे में नबी के खिलाफ बात हो, रब्बे काबा की कसम ज्योतियों के ठोकर मार कर निकल। हमें ऐसा जलसा गवारा नहीं जहां मुस्तफा के खिलाफ बात हो रही हो, हमें ऐसी अंजुमन गवारा नहीं जहां मुस्तफा के खिलाफ बात हो रही हो, हमें तो ऐसा जलसा चाहिए जहां मुस्तफा की तौसीफ बयान की जा रही हो, हमें तो ऐसा जलसा चाहिए जहां मुस्तफा की तारीफ हो रही हो। रब्बे काबा की कसम कुरान मुकद्दस में अरहम के अलिफ से लेकर सूरह नास के आखिरी सीन तक रब्बे काबा की कसम आप पर डालिए, सूरह मरियम पर डालिए, सूरह फातिहा पर डालिए, सूरह बकरा पढ़ लीजिए, सूरह यासीन पढ़ लीजिए, सूरह ताहा पढ़ लीजिए। रब्बे काबा की कसम अगर आप कुरान को मुकम्मल पढ़ लेंगे तो पूरे कुरान में मुस्तफा की शान नजर आएगी, मुस्तफा की तौसीफ नजर आएगी। आज नबी को अपनी तरफ कहने वाला मैं चैलेंज करता हूँ कि कुरान में किसी भी आयत में तुम तो तुम हो, तुम्हारे बाप की भी तारीफ नहीं है, तुम्हारे दादा की तारीफ नहीं है, तुम्हारे खानदान की तारीफ नहीं है। अल्लाह की कसम पूरे कुरान को अल्लाह ताला ने मुस्तफा की शान से, मुस्तफा की अजमत से भरपूर कर पूरे कुरान से मामूल फरमा दिया है। कुरान की कोई ऐसी आयत नहीं जहां मुस्तफा का जिक्र ना हो, कुरान की कोई ऐसी रुकू नहीं जहां मुस्तफा का जिक्र ना हो, कुरान की कोई ऐसी सूरत नहीं जहां मुस्तफा का जिक्र ना हो। अल्लाह की कसम अगर मुस्तफा को पहचान ना हो इधर उधर मत भागो, मुस्तफा की अजमत को समझना हो इधर उधर मत भागो। चलो बरेली शरीफ चलते हैं, इमाम इसको मोहब्बत की बारगाह में चलते हैं, आला हजरत की बारगाह में चलते हैं, जिन्होंने मुस्तफा की अजमत को हिंदुस्तानी मुसलमान के सीने में डाला, मुस्तफा की अजमत को पाकिस्तानी मुसलमान के दिलों में बैठाया, जिन्होंने मुस्तफा की अजमत को एशिया व यूरोप में डाला, जिन्होंने मुस्तफा की अजमत को अरब ममालिकों में बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने में, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, इंडोनेशिया हो, अमेरिका हो, ईरान हो, इराक हो, मुल्क शाम हो, रब्बे काबा की कसम पूरी दुनिया में मुस्तफा की अजमत को जहां जहां नबी के कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं, कुरान के मानने वाले हैं, हदीस के मानने वाले हैं, सुन्नत पर अमल करने वाले मुसलमान हैं, पूरी दुनिया के मुसलमानों के सीनों में अल्लाह ताला ने नबी की अजमत को ऐसे आला हजरत के जरिए मोमिनों के दिल में डाला। पूरी दुनिया पुकार कर कहने लगी, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, सारी दुनिया की मुसलमान पुलिस से गोली मिलाकर कहने पर मजबूर हो गए कि डाल दी कुल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत लाखों आज हर घर में नबी के जिक्र का चिराग जल रहा है, इलाके इलाके में नबी की मोहब्बत का शम्मा रोशन है। हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, पूरी दुनिया में चले जाइए, जहां भी मुस्तफा के इश्क का चिराग जलता नजर आए, समझ जाना यहाँ अहमद रजा के मानने वाले हैं, यहाँ तक रजा की पहुंच है। रब्बे काबा की कसम जब नबी की अजमत को आला हजरत ने मोमिनों के सीने में डाल दिया तो अल्लाह ताला ने
भी मुसलमान के सीने में ना। बिरादर इस्लाम, हम तो आला हज़रत के मानने वाले हैं, मखदूम टिशोशा के मानने वाले हैं, अजमेर मोहल्ला के ख्वाजा गरीब नवाज के मानने वाले हैं। आज हिंदुस्तान के कोई भी सुल्तान हो जाए, लेकिन रब्बे काबा की कसम, अगर रूहानी सुल्तान देखना हो तो गरीब नवाज नजर आएंगे, ख्वाजा मोइन नजर आएंगे, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम को फैलाया वो ख्वाजा मोइनुद्दीन है, और जिन्होंने इस्लाम को बचाया वही आला हज़रत है। बिरादर, हम लोग रसूल के मानने वाले मुसलमान आज इस जलसे में देखिए छोटे छोटे बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं। आप हज़रत की दुआएं हैं, आपका दानो खैरात है कि बच्चे कुरान और हदीस को पढ़कर आलिम दीन बन रहे हैं, ताकि नबी के इश्क के चिराग को आपके दिल में रोशन कर सके। कहिए सुभान अल्लाह। बिरादर इस्लाम, ऐसे ही हमें कोशिश और मेहनत करनी चाहिए कि हमारा मदरसा कामयाब हो, बच्चे आलिम बने, जिनके बारे में रसूल फरमाते हैं जब तक तालिबे इल्म पढ़े वो मेरा मेहमान है। कहिए सुभान अल्लाह। जब आलिमे दीन बन जाए तो मेरा नाइब है। कहिए सुभान अल्लाह। छोटे मुस्तफा के इल्म के वारिस यहाँ जलवागर है, इनके चेहरे को देखना, मुस्तफा के चेहरे को देखने का सवाब मिलेगा। कहिए सुभान अल्लाह। ब्रदर, ये जलसा सजा है, पैंडिंग, लाइटिंग, माइक, बाहर से उलमाए किराम आए हैं, बच्चे आए हैं, सनाखाने मुस्तफा आए हैं नबी की अजमत को बयान करने के लिए, रसूल कौनैन के जिक्र को बयान करने के लिए। और अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है कि जिसने मेरे नबी का जिक्र किया उसी ने मेरा जिक्र किया। कहिए सुभान अल्लाह। नबी का जिक्र खुद खुदा का जिक्र है, नबी की मोहब्बत खुदा की मोहब्बत है, नबी की नाम खुदा की इबादत है। अगर मुस्तफा से प्यार है यकीनन उसको खुदा भी प्यारा है। कहिए सुभान अल्लाह। बिरादर इस्लाम, बस इस लाइट और खर्चे के लिए ये जलसा ताकि और भी अगले साल भी हो। आप लोग चाहते हैं ना जी, हर साल हो, नबी की नात सुनने को मिले, कुरान और हदीस की बातें सुनने को मिले, इतने सारे तलबा किराम के चेहरे की जियारत करने को लिए मिले। बिरादर, बस मैं आप हज़रात के सामने ज्यादा नहीं, मैं सिर्फ 5 शख्स चाहूंगा इस खर्चे के लिए जो 500 रुपया करके अपने नबी पर कुर्बान कर दे। जब रसूल कौनैन ने मक्के में ऐलान किया है, मेरे सहाबियों, अब दीन की तो जरूरत तुम्हारे पैसे की थी, मालो दौलत की थी, मस्जिद बनाए, मस्जिद नबी की तामीर करें, लेकिन अब पैसे की जरूरत नहीं। कुरान में खुदा ने आयत नाज़िल फरमा दी है, अब तुम्हें जिहाद करना होगा। साहबी का छोटा छोटा बच्चा भी हाथ में तलवार लेकर निकल गया। या रसूल अल्लाह, आपकी अज़मत कोई खातिर, आपके दीन की खातिर, आपकी शरीयत की हिफाजत के लिए अगर हमारी गर्दन कट जाए तो हम गर्दन काटने को भी तैयार हैं। अगर गर्दन काटना पड़े तो दूसरे का गर्दन काटने को लिए भी तैयार है। कहिए सुभान अल्लाह। बिरादर, आज बच्चे लुटाने की जरूरत नहीं। इमाम हुसैन ने अपने गर्दन कटा दी, इमाम हुसैन ने अपनी आलो औलाद को कटा दी, छोटे 6 माह के अली असगर को कटा दिए, जवान बच्चा अली अकबर को कटा दिए, हजरत कासिम को भी कटा दिए, और मोहम्मद को भी कटा दिए। इसलिए नहीं कि इमाम हुसैन की शोहरत हो जाए, इसलिए नहीं कि उनकी अजमत बुलंद हो जाए, इसलिए नहीं कि उनका नाम रोशन हो जाए, बल्कि इसलिए अपनी आलो औलाद को कटाया कि मुस्तफा की दीन की हिफाजत हो जाए, मुस्तफा की शरीयत बच जाए, मुस्तफा की तरीक़त बच जाए, मुस्तफा की मोहब्बत मोमिनों के सीने में बाकी रहे। लोगों, आज मैं आपसे औलाद नहीं मांगा, क्या